Checked it once, no. रवि ने लाया था। वेजिटेबल प्रोडक्ट को आप ये सब क्या है? ये आपका डुप्लीकेट है, फिक्स्ड लेवल प्राइस, इसका कुछ नहीं। ये सब आपका निकाला हुआ है? कौन सा वो कलर है, वो डिफरेंट केमिकल्स है उसमें। अच्छा, रिएजेंट कॉपर सल्फेट का रिएजेंट मतलब आपका जो ड्रीम है वो चालू हो। हाँ चालू कर देंगे। इससे तो निकलेगा ये तो। और ये झारखंड में इसका स्कोप भी बहुत है, बैरन लैंड बहुत है। बैरन लैंड में अगर ये फ्लावर आते हैं और थोड़ा सा भी आप पहले से बोल रहे हैं ना, इसमें हम वैल्यू एडिशन ही करेंगे। और प्रधानमंत्री जो बोले हैं ना कि एग्रीकल्चर में डबल करना या ट्रिपल करना, वो वैल्यू एडिशन को ही लेके बोल रहे हैं। राइट, वो अगर आप अपने प्रोफेशन में आप अपने प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, बिजनेसमैन हैं, आप प्रोफेशनल इंडस्ट्रिस्ट हैं, वैल्यू एडिशन हम नहीं करेंगे क्या आपका जो दृष्टिकोण है हाईली अप्रिशिएबल है। सबसे पहले आप उसको एज ड्रीम को सच्चाई में बदल रहे हैं। राइट तो इटिकल रियल इंटरप्रेन्योर्स इसमें कोई पॉइंट बनेगा चलिए आप इंस्टीट्यूट में तो उसमें काफ़ी कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ कर सकते हैं, काफ़ी लोगों को मदद हो सकता है इसमें। अभी एक और जो फ्रंट खुला है वो भेंड्रा वाला, भेंड्रा अच्छा वो शेर साहब के ज़माने का एंटरप्रेन्योर सेंटर है। अच्छा भेंड्रा स्टील क्लस्टर, ओके। यहाँ ये लोग गए हैं दो बार। इसमें हम और एक यूज कर सकते हैं जो आदिवासी पीपल का जो नॉलेज है, इथनोबोटनी का जो नॉलेज है, जो ट्रेडिशनल नॉलेज अभी रुक जाइएगा। Forget it. Just forget it. चिंतन नहीं वो पार्टिसिपेंट्स लेके Director ITI Hyderabad and all our colleagues there are with us, HODs of different departments, Dean Associate Deans and all other officers, all instructors are with us. Very shortly we will inaugurate the office and apps of ACIC, ITI Foundation. We will be the main key person who will be inaugurating this growth of ACIC along with the Director ITI. So shortly in 2 minutes we will be inaugurating.
I also want दो जो gigs है. Ladies and gentlemen, to this magnificent, glorious day. It has not all been plain sailing, but never has the landfall or safe harbored look more exciting. With this quote, I, Dr. Akanksha Sinha, invite you to the inauguration of ACIC IIT ISM Foundation. Light is a symbol of brightness and prosperity, as sunlight expels the darkness of might. To make the morning a blessed one, let us invoke Goddess Saraswati by lightening the lamp of knowledge and wisdom. For this, I would like to request Dr. Chintan Vaishnav, Mission Head AIM Niti Aayog, along with Professor Rajiv Shekhar and all the directors of ACIC IIT ISM Foundation to enlighten the lamp. आजी मैडम आप उधर आजी सर आजी अमित आकांक्षा मैडम आप इधर इस तरफ पंकज नहीं इसी से भी करवाएंगे Now I request all the dignitaries to raise the curtain. आजी मैडम आप लोग भी पास हो जाए पीछे भैया पीछे Then we are having a ribbon cutting ceremony. सर एक फोटो ले लेंगे आप साइड Now, before proceeding to the final inauguration venue, we will have a walkthrough to all our laboratories. Each is ready. Uncle sir, कोई आइए please. हम तो देख सकते हैं Sir, Uncle sir, कोई sir आइए. Where is your oil? Yes, sir. Bring the oil. आने दीजिए सबको दे दीजिए So look, explain Anantji. आप अंदर आ जाइए come inside. Loudly. This is a very interesting शांत रहिए प्लीज Just wait. Then you little bit loud. एक बड़ा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था कि काफ़ी एक जगह फूल उगाए जा रहे थे तो हम लोगों का इन लोगों का आइडिया था कि भाई इससे कोई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट निकाले तब हम लोगों ने ACIC ने प्रोफेसर दास को अप्रोच किया और इन्होंने एक तरीका निकाला जिनमें सब फ्लावर से ये ऑयल एक्सट्रैक्ट किया गया है तो इसके बारे में आप समझाइए बताइए Good morning to all. Myself, Dr. Anandakrishnan. Actually, we have extracted essential oil and different natural pigments from marigold flowers. We have actually different cultivars of flowers here.
and this is actually means dyed material using the color that has been extracted from the natural dye. yeah, it's actually a natural dye. It's called means lutein, and it is being extracted and means tested in this cloth. This is done in this laboratory. Yes, Here. yeah. That's the point. Yes, Okay. sure. And you saw the well. What do you have at your request? Yes, Okay. and this is actually the natural essential oil that has been distilled from these marigold flowers. That has been also done there. You can see the experimental setup. arrangement there. And it is having several means terpenoids and carotenoids in it, and it is having very good means market value also. And it is having means medicinal use and means therapeutic use and cosmetic use also. So it is a very good commercial product that we can make from here. So this is the whole purpose is going to solve the issue of the agriculture product which has been in the Jharkhand, particularly in this area. And we are going to use the knowledge of the ethnobotany and traditional knowledge of the Adivasi peoples, particularly where the flowers and all these things are growing up. So IIT ISM is going to add the value into it, particularly scientific value as well as technical value. So how we can get the product in a better way and add the value which can use as a pharmaceutical product. So that is the whole purpose of this laboratory. I will thank Mr. Das. One of the program we were participating in, Mr. Ravi, he also accidentally participated, and he has just proposed that he wanted to grow. When Mr. Das asked, आपके लिए हम ISM क्या कर सकता है, तो इन्होंने कहा मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा जो ये फूल का प्रोडक्ट है बस यही है. तो इन्होंने कहा कि हम इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, आप आगे आइए. आई थैंक यू. और 1 साल भी नहीं लगा और इन्होंने ये करके दिखाया. 1 साल नहीं, कुछ महीने लगे और इन्होंने करके दिखाया. गिव एक तालियां बजाओ. 150 एकड़ में फैल चुके हैं धनबाद में. 40 डिसमिल से हम लोग कहानी शुरू हुआ था. आज हम लोग 150 एकड़ में फूल का खेती कर रहे हैं. आज हम लोग का फूल जो है मार्केट में सही रेट नहीं मिल पाता माला के रूप में, तो हम लोग चाहते थे कि इसका वैल्यू एडिशन बने. तो जब पार्थो सर और हमारे अमित शुक्ला सर हमारे साइट पे आए, उस जगह पे आए जहाँ पर कोई आना नहीं चाहता है, उन आदिवासियों के पास आए जहाँ पर हम लोग ये रोज़गार निकाल चुके हैं फल फूल की खेती, तो वहाँ पर सर आए और वहाँ पर भी आप आगे बढ़ें, आप मन लगा के उगाएं. उगने के बाद मेरा कर्तव्य है इसका अलग रूप देना. तो आज हम लोग देखें तो हम लोग पूरी तरह से भावुक हो चुके हैं. और सबसे बड़ी बात है इनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि अभी एक ऑर्गेनिक खाद की बात आ रही है. तो मैं बताऊँ इनकी जितनी फ्लावरिंग आप देख रहे हो, इसमें केमिकल इन्होंने लेसर मार्क का यूज़ किया है. मैक्सिमम ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करते हैं. और कहाँ गए ऑर्गेनिक बादशाह? आइए कहाँ है? हाँ ठीक है, थैंक यू. मैं जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. ये ऑर्गेनिक खाद देते हैं और इनका फ्लावरिंग होता है. थैंक यू. Sir, am I audible? Okay, sir. Secret in the night sky, as the stars shine, they tell a million stories, some of yours and a few of mine. The galaxy of intellectuals, honorable guests, how lovely is this day, as the air today has a smell of liberty, kindness, humanity, and everything precious and beautiful. So, hold your hearts because you may eventually discover the beauty of this day as the event eventually starts blossoming. You all have known IIT ISM Dhanbad since 1926. Now, open your arms and embrace ACIC IIT ISM Foundation. On behalf of the ACIC team, I am profusely elated to introduce Dr. Chintan Vaishnav, our chief guest. Dr. Vaishnav is a socio-technologist and engineer trained to design and build large-scale systems that possesses both human as well as technological complexities. Presently, Sir serves as the Mission Director for Atal Innovation Mission, a flagship initiative of the Government of India under NITI Aayog. Chintan Sir is on leave from Massachusetts Institute of Technology for his current assignment. As a teacher, innovator and entrepreneur, Sir has split
on you. Thank you very much. Can you hear me? Yes, sir, you are audible. Okay, excellent. Well, thank you very much for this generous introduction. I am actually extremely excited कि आज ये धनबाद में इसका इनॉग्रेशन हो रहा है. I will speak in Hindi because I realize कि अब तक का जो कार्यक्रम रहा उसके काफी हिंदी में बातचीत हुई, तो I am imagining कि I will be more inclusive अगर मैं हिंदी में बात करूँ. So hope I am right about it. Once again, delighted to be with you, Dr. Rajiv Shekhar. Thank you very much for all the support from your side. आपके टीम सबके साथ जो मिलकर ये शुरुआत हुई है उसका बहुत बहुत शुक्रिया. आज एक्साइटमेंट इस बात का है कि हमारे जहन में ये है कि यहाँ क्या चीज़ यूनिकली हम कर पाएंगे जो और जगहों में करनी मुश्किल हो. ऐसी क्या चीज़ें धनबाद में क्या चीज़. As you know, आज का जो इनॉग्रेशन है दिस इज ये चौथा अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर. अब तक 3 इनॉग्रेट हुए हैं, एक जयपुर में, एक मोहाली में चंडीगढ़ के पास, और एक हुआ है तमिलनाडु कोयम्बतूर में. तो धनबाद का ये इट इज ओनली द 4th ऑफ द अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स. नाउ इसमें द ओनली वर्ड दैट इज द न्यू वर्ड, अगर इंक्यूबेटर्स आप देखें इंडिया में हर जगह, तो यहाँ इस सेंटर में कम्युनिटी वर्ड शामिल किया गया है, क्योंकि इसका विजन ये है कि ये कम्युनिटी को जो उसके आसपास जो कम्युनिटी है उसके प्रॉब्लम्स को वो उस पे काम कर पाएगा. सो आज जब मैं इस इनॉग्रेशन के बारे में सोच रहा था तो मैं देख रहा था कि अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देखें कौन कौन से, तो इसमें धनबाद में जो यूनिकली अप्लाई होते हों ऐसे सस्टेनेबल गोल्स कौन कौन से. मुझे 4 गोल्स मिले जब मैं देख रहा था. एक तो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. ये माइनिंग टाउन्स जो हैं उनका तो एक सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे रहे. तो दैट इज गोल नंबर 8, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो यूनाइटेड नेशंस के. उसके बाद 3 और चीज़ें मुझे ध्यान में आई. जैसे धनबाद को कोल कैपिटल कहते हैं हिंदुस्तान का. अब much of the struggle in energy and climate change is about कि ये जो coal based economy है उससे हम धीरे धीरे ट्रांजिशन करके क्लीनर कोल वगैरह की दिशा में कैसे जाए. तो ये बदलाव जो होना है जो होगा वगैरह, इसमें धनबाद इसकी शुरुआत धनबाद जैसी जगहों से होगी. तो ये जो है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ये ग्लोबल एसडीजी गोल नंबर 7. इसके साथ जुड़ा हुआ लॉन्ग टर्म गोल क्लाइमेट एक्शन भी है. जो जब एनर्जी सोर्सेस क्लीन होंगे तो क्लाइमेट भी ज़्यादा क्लीन होगा वगैरह. अभी इस रूम से में आने से पहले हमने एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल देखा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, कि एग्रीकल्चर में से जो निकल रहा है उसके ऊपर वैल्यू एडिशन कैसे किया जाए. दिस इज ऑफ कोर्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैलेंजेस ऑफ आवर कंट्री, राइट. एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन कैसे किया जाए, क्योंकि हमारे किसान जो हैं
I was very happy by the way, एक दो किसानों को देख के भी हमारे किसान जो है वो उगाते काफी चीजें हैं, लेकिन जो पश्चिम के देशों में जैसे हो रहा है उनकी जो फार्म गेट पे जो उसका प्राइस जो मिल रहा है उससे कई ज्यादा प्राइस कस्टमर देने को तैयार है अगर आप वैल्यू एडिशन कर पाए। जो फूलों का उदाहरण जो दे रहे थे आप, दैट इज अ वंडरफुल एग्जांपल उसका। तो इस प्रकार की चीजें अगर हो पाए दैट वुड बी वंडरफुल। बट आई थिंक ऑल ऑफ दिस विल ऐड टू क्लाइमेट एक्शन व्हिच इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 30। बाकी भी डेवलपमेंट गोल्स हैं, फॉर एग्जांपल पॉवर्टी रिडक्शन, इनइक्वालिटी और इनइक्विटी रिडक्शन वगैरह, वो सारे गोल्स हैं, वो तो सब जगहों पे लागू होते हैं। बट धनबाद के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी चीजें हैं जो हम यूनिकली डेमोन्स्ट्रेट कर पाए? तो मुझे लगता है कि 3 चीजें जो यूनिकली धनबाद में डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं वो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट एक्शन, ये 3 मेरे जहन में हैं। अच्छा, ये एक और चीज होती है जो बच्चे काफी बार एक अच्छा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो यूनाइटेड नेशंस ने बना दिए, लेकिन उसको मैं अनुभव कैसे करूं? मेरे जीवन में इसका क्या मतलब है? तो मुझे कभी-कभी लगता है कि इसको समझने के लिए एक हम ऐसे सोच सकते हैं, जैसे अगर आप देखें कि डिसेंट वर्क की जो बात हुई कि आपका काम और काम की जो जिस परिस्थिति में आप काम कर रहे हैं, जैसे माइनिंग में तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि जिस परिस्थिति में आप काम कर रहे हैं, अगर आप ये पूछें अपने आप को कि आज हमारा जो जनरेशन है, जैसे मेरा जब जन्म हुआ तब जो परिस्थिति में एक माइनर काम करता था, ये मेरे जीवन काल के दरमियान क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं जिससे इन माइनर्स की परिस्थिति, जो माइनिंग में काम करते हैं, उनकी परिस्थिति में बदलाव आए या कुछ सुधार आए? अगर मैं ये कर सकता हूं तो मैंने ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 8 पे कुछ काम कर। आप पूछिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप क्लीन वाटर पे काम कर रहे हैं, अगर मैंने ये प्रश्न पूछा कि क्या मेरे घर के पास तालाब है, जब मेरा जन्म हुआ तब उसकी जो परिस्थिति थी उससे अच्छी परिस्थिति में मैं उसको छोड़ सकता हूँ? मैं जब जानता हूँ, अगर मैंने किया तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि यहाँ अपॉर्चुनिटी धनबाद में ये है कि हम दुनिया को ऐसा एक उदाहरण दे सकें कि एक माइनिंग टाउन में किस प्रकार के बदलाव इनोवेशन के द्वारा आ सकते हैं, और इसमें मैं मानता हूँ IIT ISM पूरी तरह सक्षम ये करने के लिए, और इस पे काम करने के लिए हम अटल इनोवेशन मिशन आपके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार है। मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि हम लोग वहाँ पे पर्सनली नहीं आ पाए, लेकिन अगले महीने 2 महीने में हमारी टीम जरूर वहाँ पे आएगी और आपके साथ मिलकर एक स्ट्रेटजी वगैरह किस प्रकार का काम हो सकता है उस पर काम करेंगे। मुझे बहुत खुशी हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर आप जो दिखा रहे थे, इतनी कठिनाई के बावजूद मैं काफी कुछ देख पाया एक्चुअली, और जो आप डिस्क्राइब कर रहे थे उसको सुन पाया, तो that was very nicely done, so thank you very much, and बहुत काम हम साथ में कर सकते हैं। अगेन इसको मैं अपनी बात समाप्त करते हुए एक ही बात बताऊंगा कि अपेक्षा यह है कि धनबाद अपनी जो समस्याएं हैं उसके ऊपर कुछ इनोवेशन करेगा, और ये दुनिया के लिए उदाहरण बनेगा, और इसमें हम लोग साथ में काम कर पाएंगे। ISM will do a wonderful job, I have no doubt.
सो बहुत बहुत बधाई हो आप सबको, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Recording in progress. Thank you so much, sir, for your golden words. Next, I welcome a dynamic professor who is the director of IIT ISM Dhanbad, Professor Rajiv Shekhar. The man of distinct vision and fountainhead of illuminating ideas, an idol of knowledge and experience and inspiration to all of us. Sir, welcome, and please, we are looking forward to hear from you. माननीय चिंतन वैष्णव जी, हमारे IIT ISM के साथी, हमारे फैकल्टी, स्टाफ, ऑफिसर्स, हमारे स्टूडेंट्स, प्रेस के लोग, ACIC की टीम, CPWD की टीम, CMU की टीम, सिक्योरिटी की टीम, आप लोग सबका स्वागत है। चिंतन जी, आप आए नहीं, लेकिन आपके आने की बात सुन के हमारा जो मूवमेंट हुआ नए बिल्डिंग में वो फटाफट हो गया, तो उसके लिए आपको धन्यवाद। ACIC एक यूनिक इनिशिएटिव है और चिंतन जी ने ओवरऑल उसके बारे में आपको बताया। मैं कुछ एग्जांपल्स देके बताना चाहता हूँ कि हमारी टीम ने क्या क्या, ACIC की टीम ने क्या क्या पहल किया। तो हम लोग के काम कुछ डिफरेंट कैटेगरीज में हुए हैं। पहले है प्रोडक्ट क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, इसमें और प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसमें एक अगरबत्ती बनाने का प्रोग्राम है, ये प्रोजेक्ट है जो हमारे प्रोफेसर गुप्ता द्वारा बनाया गया एक मशीन यूज़ करता है। और दूसरा जो अच्छा काम रहा वो लैक का। हम लोग को पता नहीं है, लेकिन लैक झारखंड सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इस देश में, लेकिन फार्मर्स को सही मूल्य उसका नहीं मिलता है। तो हम लोग दो पहलू पे काम कर रहे हैं। एक लैक प्रोसेसिंग के लिए इक्विपमेंट जो है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमारे वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट भाटिया जी का बहुत बड़ा सहयोग है और वो आप भी देखेंगे। और आपने फ्लावर से ऑयल का तो आपने देखा ही है। उसके बाद एक दो और प्रोजेक्ट्स हैं। बैम्बू से ये लोग कुछ चीज़ें बनाते हैं, उसका चूरा बचता है, उसका कैसे यूज़ हो। वो लकड़ी इज़ वेरी प्रेशियस। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है जो हम देख रहे हैं। भेंद्रे एक गांव है जहां करीब 150 परिवार बिजनेस में हैं और लोहे के टूल्स वो बनाते हैं। लेकिन बनाते हैं वो जो पुराने फिल्म में जो लोहार को आप देखते थे ना कि आग में डाला और हथौड़ा से मारा, उस तरह से करते थे। और उनका प्रोसेस में प्रॉपर कंट्रोल नहीं होता था। तो दो उसके नुकसान होते हैं। एक कि वो क्वालिटी नहीं मिल पाता है और वो जैसे तपारिया जैसे टूल मेकर से उनसे compete नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ 150 परिवारों, 150 छोटे बिजनेसेस का के आजीविका पे प्रश्न उठ गया है। तो इस पे भी ACIC की टीम काम कर रही है। दूसरी हमारी जो महत्वपूर्ण पहल है हमारी मतलब ACIC की, वो है विमेन एम्पावरमेंट में। हम चाहते हैं कैसे औरतें अपने अलग कमाई करके इंडिपेंडेंट बने। तो इसमें भी बहुत अच्छा पहल किया गया है। हम लोगों ने ट्रेनिंग करवाया काफ़ी चीज़ों में, जैसे टोमेटो सॉस बनाने का। और चूँकि ये सब लोअर परिवार से आते हैं, ये अपना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं खोल सकते हैं। तो इसीलिए उनका सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू हम लोग अभी जैसे हम लोगों ने कुछ इक्विपमेंट भी दिया टोमेटो सॉस बनाने का, ताकि वो घर में टोमेटो सॉस बनाए और आसपास के परिवार और दुकान को बेचे, ताकि उनको कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो।
उसके बाद और भी कई पहल हैं, जैसे आप देखिएगा कैंडल बनाने का, पेपर बैग बनाने का। तो इस तरह के काफ़ी और पहल है जो हम खाली देख रहे हैं, घर घर में जाते हैं। अब जैसे आपको एक देखिएगा एक प्लग बैन है जो हमारे यहाँ इंक्यूबेटी, वो उसका मॉडल बड़ा ज़बरदस्त है। वो प्लग के पार्ट्स, पावर प्लग के पार्ट्स घरों में असेंबल करवाता है। तब देखिए इससे कितना फ़र्क पड़ता है आजीविका पे, और ये सब विमेन आर इन्वॉल्व इन ऑन दिस। और दूसरा पहलू तो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का है ही, उसके भी आप काफ़ी एग्जाम्पल्स देखेंगे। हम लोग ये सोचते हैं कि इसको और कैसे वाइब्रेंट बनाएं। तो हमारा जो एक सोच है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। या फूल से ऑयल करना, या लैक का मशीन, या कैंडल बनाने वाली मशीन, इसको हम लोग अपने बीटेक प्रोजेक्ट्स, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट से जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। और अभी हमारा जो नया इनिशिएटिव हुआ है नरेश वशिष्ठ सेंटर फॉर टिंकरिंग एंड इनोवेशन में, प्रोफेसर पंकज मिश्रा के ऑस्पिसेस में, वहाँ पर हाँ, वहाँ से जो एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंटर्नशिप इनिशिएटिव हुआ है, जहाँ हम ये अपने बीटेक स्टूडेंट्स को इस्तेमाल करेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, इससे भी उसको जोड़ा जाएगा। एक और पहल मैं बताना चाहूँगा, लैक में वो चूड़ी बनती है, लेकिन इसके बहुत हाई वैल्यू एप्लीकेशंस है, जैसे मेडिसिन में। तो फार्मर्स को उचित मूल्य पहुंचाने के लिए हमारे 2 कलीग्स हैं मैनेजमेंट में, शशांक इनको लीड कर रहे हैं, और रुचिका फ्रॉम मैथ्स एंड कंप्यूटिंग, उन्होंने एक ब्लॉकचेन इनिशिएटिव किया है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के साथ मिलके। अब उसमें उसका पूरा वेबसाइट सब बन रहा है, जिससे फार्मर्स को लैब के लिए उचित मूल्य मिल पाएगा, और फिर बाद में ये कॉन्सेप्ट हम दूसरे एरिया में देंगे। ये सब लेकिन कैसे हुआ? जब हम लोग शुरू किए थे हमें कोई आइडिया नहीं था, बट वी यूज द फॉर्मूला दैट वर्क बेस्ट फॉर ऑल ऑफ अस। अच्छे लोगों को हायर किया, उन्हें छोड़ दिया कि भाई ठीक है, ये आपका कंपनी, अब ये कंपनी है, ये आपकी कंपनी है, आपको चलाना है, और नहीं चला पाइएगा ठीक तो आपको जवाब देना पड़ेगा बोर्ड को। तो इसीलिए मैं ACIC की टीम का बहुत आभारी हूँ। अमित शुक्ला जी CEO, आकांक्षा जी मैनेजर टेक्नोलॉजी, कमीलिया मैनेजर प्लानिंग एंड ऑपरेशन, सोनाली जी यंग प्रोफेशनल, सानू जी अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, और भाटिया जी का तो नाम लूँगा ही बिकॉज वो हमारे ACIC का नहीं होते हुए भी एक अभिन्न अंग हैं। और बबीता घोष जी का भी मैं नाम लेना चाहूँगा, उनका भी हमारे स्टाफ की वाइफ है, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। और आई ऑल्सो वांट टू, एज अ चेयरमैन का सबसे अच्छा होता है ना, काम कम करो लेकिन क्रेडिट सब ले जाओ। तो काम करने वालों में हमारे सौम्या जी का बहुत बड़ा रोल रहा है, शालीवाहन जी, और धीरज जी तो खैर लाजवाब है। आई थिंक ही इज अ सुपर्ब डीन ऑफ इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ऐसा मिलना बहुत मुश्किल है। और फाइनली मैं यहाँ हर 2 दिन आता था। जब 3 दिन पहले आया तो वीरान सा जगह था, गंदा सा जगह था, और कल मैं ऐसे ही देखने आया कि भैया हुआ क्या है। तब देखा कि जगह का रूप ही बदल गया, जैसे हेल हैज बिकम हेवन, इट वाज लाइक दैट। एंड इसके लिए मैं CPWD को का आभारी हूँ, स्पेशली प्रमोद रवानी जी। उन्होंने बहुत मेहनत किया, और हमारी ECMU की टीम लेड बाई संजीव मुखर्जी जी, और प्रतीक है, अरविंद है, और भी जो लोग हैं, राजीव मित्रा, जो सब काम कर रहे हैं। और फाइनली सुबह और फाइनली देखिए, धनबाद में काम आसानी से नहीं होता था, कई बार धमकाना पड़ता था, और धमका के काम करवाने में कहा गया था कि नहीं करोगे तो घुसने नहीं देंगे। और इसमें हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर का बहुत बड़ा रोल है, मैं उनको यूज़ करता था। तो इन एनी केस राम मनोहर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो
पूरे कैंपस को सुचारू रूप और शांतिपूर्ण रूप से चलाने में आपका बहुत बड़ा सहयोग है। तो ACIC टीम, वेल डन। ओके, बट रिमेंबर, वेल बिगन इज ओनली हाफ डन। हम लोगों की अभी शुरुआत है। चिंतन वैष्णव जी ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात की है, एक बार ये थोड़ा और स्टेबल हो जाए तब हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ बढ़ेंगे। फिर से हम ACIC टीम का बड़ा आभारी हूँ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। Our confidence as always. Everyone can tell you the risk, and entrepreneur can see the reward. It's not about ideas, it's about making ideas happen. Yes, the incubatees of ACIC IIT ISM Foundation have passion and imagination to be a successful entrepreneur. Let's hear what their ideas are one by one. Chal and Mrs. Akriti, they are from Vipul Khel Vidya Private Limited. Hello everybody, Chintan sir, Raju sir, Amchika sir, Liat sir, और जिसको भी मैं भूल रही हूँ, आप सबको, सभी डिग्निटरीज को बहुत प्रणाम। आज यहाँ पे होना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमारे लिए एक अचीवमेंट है यहाँ पे होना। सो ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। चिंतन सर, आपने आज सस्टेनेबल गोल्स के बारे में बात की। डेवलपमेंट गोल्स का में एक गोल एजुकेशन भी है, एजुकेशन फॉर ऑल सेक्टर्स। और आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की है, तो हमारा ये मानना है कि डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन का बहुत बड़ा हाथ है, और वही उसी नेक्स्ट जनरेशन को और संवारने के लिए हमारा एक छोटा सा आइडिया है। बेसिकली हमने ये सवाल पूछे, हमारे बच्चे एक्चुअली हमारे देश के बारे में क्या जानते हैं? क्या वो सिर्फ फैक्ट्स जानते हैं, सिर्फ लिस्ट जानते हैं चीज़ों की इंडिया की, या एक्चुअली इंडिया क्या है, इंडिया का मीनिंग समझते हैं, इंडिया की संस्कृति समझते हैं? और दूसरा सवाल ये था कि क्या हमारे बच्चे अपने फ्री टाइम में, प्ले टाइम में क्या स्पेंड कर रहे हैं? आजकल स्क्रीन एक्सपोजर का सभी पेरेंट्स को बहुत बड़ा एक टेंशन का सोर्स है। एंड थर्डली, हमारे बच्चे खेल रहे हैं तो किस चीज़ से खेल रहे हैं? प्लास्टिक टॉयज हैव टोटली कैप्चर्ड द टॉय इंडस्ट्री, एंड प्लास्टिक से जो हमारा एनवायरनमेंट में जो इफेक्ट है वो तो हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इन चीज़ों को दिमाग में रखे हुए हमने एक सीरीज ऑफ गेम्स बनाए, एजुकेटिव गेम्स दैट आर एंटरटेनिंग ऑल्सो, दैट आर इंक्लूसिव, एंड दे आर रिलेटेड टू द इंडियन कल्चर। These games, all these games, ये सारे गेम्स जो हैं अलग अलग एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं, और इसके लिए हमारी this comes under the umbrella of Sanskriti Khel Vidya, which is the registered trademark of Vipul Khel Vidya, our company. And in this umbrella we have multiple games such as Indopedia, map-based puzzle game. We have a Twister yoga game. We have a DIY paint game, and we were lucky enough to win the award in Toykathon 2021, जो एक इवेंट था आर्ट मिनिस्ट्रीज के द्वारा टॉय इंडस्ट्री में इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए। उसमें हम लोग प्रोफेशनल कैटेगरी में वन ऑफ द टॉप 24 टीम्स में हम लोग सिलेक्ट हुए थे। हमारा आइडिया उसमें मैप बेस्ड पजल का सिलेक्ट हुआ था। उस समय हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, बस एक आइडिया था। हमने थर्मोकॉल से प्रोटोटाइप बनाया था, जिसपे हमने बस अपने आइडियाज छोड़ दिए बेसिकली। बट धीरे धीरे जैसे जैसे हमें ACIC से नॉट जस्ट सपोर्ट बट गाइडेंस मिलता रहा, आज हम उसको हम चाह रहे हैं कि वुड के ऊपर बनाएं, which is an eco-friendly material for children to play with, and
आज अभी जब जहाँ तक हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं तब तक हमारा प्रोटोटाइप इस हद तक रेडी हुआ है कि इट इज़ इन अ प्लेबल फॉर्मेट राइट नाउ। इसी तरह से द मैप बेस्ड पजल गेम इज बेसिकली to familiarize children with all the aspects of every state of India. There are themes based on. Welcome the founder of SS Clubman Private Limited, Salesh Kumar Shah. सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा KCIC का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया यहाँ पर अपने स्टार्टअप को प्रेजेंट करने का। दूसरा धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने मुझे फंड दिया 1 लाख रुपए का अपने स्टार्टअप के काम को आगे बढ़ाने के लिए। मेरी कंपनी इलेक्ट्रिकल एसोसिएट्स पे काम कर रही है। ये प्रोडक्ट पे फोकस नहीं कर रही है, सर्विस पे फोकस कर रही है। ये क्या कर रही है, लोगों को घरों में, महिलाओं को, कोई भी महिला वो उनके पास कोई एजुकेशन नहीं है, उनके पास अगर कोई भी स्किल नहीं है, कोई भी वो कोई भी काम कर सकती है। वो बस उनको आके काम सीखना होता है। काम सीखने के बाद उनको बस 20-21 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। 21 दिन इसलिए क्योंकि 8 घंटे अगर प्रतिदिन काम करते हैं तो 178 घंटे होते हैं और 180 घंटे में कोई भी काम आप लगातार 21 दिन को करते हैं तो एम्पिरिकल नॉलेज जनरेट हो जाता है। उनको सिर्फ उस असेंबल करने के लिए सिखाया जाता है, प्रोडक्शन करने में। और ये सारे पार्ट्सों को घर में डिलीवर दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फूड डिलीवर होता है। स्विगी और जोमेटो जो फूड डिलीवर करती है या फिर गारमेंट डिलीवर होता है ऑनलाइन, तो अभी तक एम्प्लॉयमेंट डिलीवरी एक भी नहीं है। और मेरी कंपनी बस इसी दिशा में काम कर रही है ताकि लोगों को घर में एम्प्लॉयमेंट डिलीवर हो सके और उनको जो है ना खरीदना पड़े ना बेचना पड़े। रॉ मटेरियल उनके घर पे डिलीवर हो गया फर्स्ट डे, सेकंड डे, फिर फिनिश गुड रिकवर हो गया, वापस रॉ मटेरियल डिलीवर हो गया, ऑन द स्पॉट पेमेंट हो गया। और फर्स्ट ट्रायल में जो है 100 घरों को मेरी कंपनी काम देगी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। और इसी दिशा में ये 2023-24 का हमने लक्ष्य रखा है और इसी दिशा में मेरी कंपनी काम कर रही है। और मेरी एक कोशिश रहेगी ये डेवलप हो जाने के बाद, सारा इफेक्टिव जनरेट हो जाने के बाद फिर इसको हम लोग वॉल्यूम स्प्रेड कर सकते हैं। इवन मुझे जलगांव से भी ऑफर मिला, वहाँ से कई एनजीओ ने ऑफर किया कि आप हमारे पास आइए, 10,000 महिलाओं को के लिए यहाँ पे घर घर पे काम है, यहाँ डेवलप कीजिए। छत्तीसगढ़ से भी मुझे ऑफर मिला, डॉक्टर वरुणिका सिंह का, वरुणिका शर्मा, उन्होंने ऑफर किया कि आप हमारे पास भी आइए और यहाँ पे डेवलप करके दीजिए। मैंने उनको कहा कि मैं पहले इसको धनबाद में डेवलप करूँगा, उसके बाद फिर मैं सारी जगह इसको स्प्रेड करूँगा। और ये पॉसिबल है, जो फूड डिलीवर हो सकता है, सारा गारमेंट डिलीवर हो सकता है, तो एम्प्लॉयमेंट भी घर में डिलीवर हो सकता है और लॉकडाउन में भी घर में बैठे लोग काम कर सकते हैं। थैंक यू। ISF परिवार को मेरी ओर से सब प्रेम नमस्कार। प्रबुद्धजन एक रात में झरिया में बिताया। अगले वर्ष मेरा कार्यक्रम है विश्व मानव समुदाय हेतु जहर मुक्त वायु जल एवं भोजन आधारित कार्यक्रम। लेकिन जब मैंने रात को झरिया में बिताया, दिन को झरिया में घुमा, नीचे आग ताप और ऊपर तापमान, सूर्य का तापमान, दिमाग में हमारा हमको ठनक गया, करूँ तो करूँ क्या। उसके बाद मैंने एक ईंट तैयार किया है। एक ईंट का वजन 1 किलो 600 ग्राम है। साइज सब एक है, न जलेगा न गलेगा न इसमें दिमक ऐसी जंग लगेगा। सबसे बड़ी विशेषता, और इस ईंट से जो घर बनेगा वो समशीतोष्ण भवन कहलाएगा। आपको न कूलर की आवश्यकता है, न पंखे की आवश्यकता है, न तापमान की चिंता है। आप लोग जितने बैठे हैं अपने दिल पर हाथ रख के कोई नहीं कह सकेंगे कि आज रात मैंने पंखा नहीं चलाया। सब कहेंगे कि हमारे यहाँ पंखा लगा था, कहेंगे ना।
मेरी एक कुटिया है, वहाँ पंखा नहीं है, पंखा नहीं है और मैं आराम से सोया, निश्चिंत होकर के सोया। जो कार्यक्रम हमारा है वो हमको समय तो नहीं के बराबर मिला है। आविष्कार 3-4 हो चुका है, कृषि के क्षेत्र में अनेकों आविष्कार हुआ, हमको सहयोग सरकार से उस रूप में नहीं मिल रहा है। ISM को मैं धन्यवाद ज्ञापन करूंगा। 1 लाख रुपए ISM ने मुझे दिया, 2,40,000 रुपए का मैंने मशीन बना के तैयार कर दिया है। जा करके ग्रुप पर ISM देखिए। और एक ईटा को कैसे आप लोग प्रोवाइड करेंगे, कैसे इसकी बिक्री करेंगे, ये आप लोगों पर निर्भर है। लेकिन इस ईटे से जो घर बनेगा वो घर सस्ता होगा, छड़ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बगैर छड़ का बिल्डिंग बनेगा और 4 तल्ला 6 तल्ला बनाइए, भूकंप रोधी होगा, ये जो क्या कहते हैं आप लोग, रेडिएशन रोधी होगा, तापमान रोधी होगा और वातावरण शुद्ध होगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करेगा। ये जो है सो ईटा क्या है, वैदिक ईटा और शोषण करने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करने की भी क्षमता है, हल्का है। और इसको जो है तो हम चाहेंगे जिस तरह से हमारा वर्मी कंपोस्ट का लैब टेस्ट हो गया, उसी तरह से ईंट का लैब टेस्ट मुझे सजल्द दे दिया जाए। सब प्रेम नमस्कार। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी वन ऑफ आवर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, मिस बबीता घोष एंड हर टीम। दे आर द फाउंडर्स ऑफ नीशा श्री प्राइवेट लिमिटेड। सबसे पहले हमारे डायरेक्टर सबको मेरा प्रणाम और ऊपर से सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं ACIC फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन लोगों ने हमें मूढ़ी मेकिंग मशीन दिया है, जिसके द्वारा हम लोगों ने अभी चूड़ा प्लस बादाम को रोस्टेड करके हमें बनाने की कोशिश किया है। और इस तरह से हम लोग चूड़ा, रोस्टेड चूड़ा, बादाम हम लोगों ने भूला है। सर ये मूढ़ी मेकिंग मशीन मूढ़ी मेकिंग मशीन में ये आत्मनिर्भर भारत में हम सब कुछ महिला मिल के कुछ महिलाओं को रोजगार देने का स्वनिर्भर बनाने का कोशिश में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सभी को कुछ न कुछ रोजगार मिले। यही हमारा प्रयास है नीशा श्री प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। डायरेक्टर सर मेरा प्रणाम और यहाँ सभी बैठे हैं गुरुजनों को मेरा प्रणाम। हमने ACIC ग्लोबल फाउंडेशन के तहत ट्रेनिंग के तहत जो टमेटो सॉस का प्रशिक्षण लिया, हमने बहुत ही अच्छा प्रशिक्षण लिया और बहुत कुछ करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। ये सॉस हमने अपने हाथों से तैयार किया हमारी ग्रुप के टीम और हमारे मनोबल को बढ़ाएं और आशा करते हैं कि हम लोग अपना ये कार्य को आगे तक लेके जाएं ताकि हमारा जो भी योगदान हो वो अच्छा हो। थैंक यू। रवि निषाद से who is the founder of Agri-Tree Research and Innovation Private Limited. जय धरती माँ, वंदे मातरम। सभी पदाधिकारियों को और यहाँ पर जितने भी उपस्थित भारतवासी देशभक्त हैं सभी को वंदे मातरम। मैं रवि निषाद RPA फार्मिंग के नाम से संस्था में ऑपरेट कर रहा हूँ और साथ में एग्री-ट्री रिसर्च एंड इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी हाल में बनाई गई, जिसके माध्यम से ACIC से जुड़कर हम लोग और भी आगे हमारे देश और धनबाद को लेकर आगे बढ़ेंगे। 40 ईस्वी से मैं फूल की खेती प्रारंभ किया था और माला के रूप में, फूल का माला के रूप में बिकना ये एक समय सीमा तक वंचित था। लेकिन कुछ दिन के बाद हमारे, क्योंकि मैं एक BSc IT होल्डर हूँ, नोएडा से रिजाइन देकर अपनी कंपनी संस्था की, और हमारे साथ स्वर्गीय परमेश्वर हेम्ब्रम जी के पुत्र सुधीर हेम्ब्रम ने अपना 99 एकड़ जमीन जो धनबाद में बंजर पड़ी हुई है वो हम लोगों को दिए 3-4 साल पहले, और उस पर आज हम लोग फूलों की खेती, आप YouTube में अगर आपको देखना है गूगल में कि धनबाद में हम लोग क्या इनोवेशन किए हैं, तो आप धनबाद में अपने गूगल से पूछिएगा कि धनबाद में फल फूल की खेती, तो हमारा बृहद रूप में काम आपके आंख के सामने रहेगा। और
5 सेकंड के अंदर आपके मेरे हाथ में वो फूल आने जा रहा है। ये आपके धनबाद की मिट्टी से उगा हुआ फूल है। आपके श्वास में धनबाद का धूल है, तो आपके हाथ में हमारा धनबाद की मिट्टी का फूल है। तो धनबाद में ये सुधीर हेम्ब्रम जी है, 99 एकड़ आदिवासी के राजा हैं। आज जिस टुंडी की तरफ बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं, नहीं जानते हैं, जाते नहीं है, माओवादियों के कारण, नक्सल प्रभावित क्षेत्र के कारण थोड़ा सा डरते हैं, वहां पर सुधीर हेम्ब्रम जी ने हम लोगों को 400 से ज्यादा एकड़ जमीन दिलवा दी है, क्योंकि हम लोगों ने वो करके दिखाया है जिसके लिए आज तक ना सोचा था ना कोई चला था। और मेरी पूरी टीम एग्री ट्री इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड आरपीएफ फार्मिंग पूरी टीम लगी हुई है कि धनबाद का एक चेहरा फल और फूल का भी बने। आज हम लोग का संतरा, चीकू, एप्पल अभी 1 सप्ताह के पहले हिंदुस्तान में छपा भी था, और सारे दैनिक जागरण से लेकर हर एक संपादक, प्रभात खबर, हर एक हम लोग को बहुत प्रमोट करते हैं। अमित सर, डॉक्टर पार्थो सर हम लोग के साइड पे आए, जहाँ पर कोई आना भी नहीं चाहता है, जहाँ पर अखबार तक नहीं आता है, अखबार, वहाँ पर पार्थो सर, अमित सर आए और हम लोग को बोले ये मेहनत आपका जाया नहीं जाएगा, इसे हम लोग एक रूप दे के रहेंगे। हम लोग के आदिवासियों के आंख से निकलते हुए आंसू हंसी में बदल गए, और हम लोग आज आपके सामने हैं। ये हम लोग पूरा आदिवासी, पूरा टुंडी और पूरा मेरा टीम के तरफ से आपको जय धरती माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग और भी इसका आगे बढ़ेंगे आपके सहयोग से, और धन्यवाद। ऑयल हम लोग आपको फूल देंगे, आप ऑयल निकालेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका एक एक वैल्यू एडिशन पे काम करेंगे। I would like to call Mr. Subir Ghosh from Okira Healthcare Private Limited. नमस्कार सभी को। हम लोग कलकत्ता से आए हैं, ओकिरा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। 2017 से हम लोग स्टार्ट किया है। हमारा जो खुद का मिशन जो है लो कॉस्ट हेल्थ केयर डिलीवरी प्रोवाइड करना। आप लोग सभी जानते हैं लास्ट 2 इयर्स कोविड सिचुएशन में पूरा दुनिया को दिखा दिया, जे डिजिटल हेल्थ केयर नहीं रहेगा तो दुनिया भी बंद हो जाएगा किसी दिन। तो ऐसी चक्कर में हम लोग इसका ऊपर रिसर्च करके 15 रुपया पर कॉल, 15 रुपीज में एक ऑनलाइन डॉक्टर्स कॉल एक कस्टमर को मिलता है हमारा मोबाइल ऐप का सोर्स में, जहां मार्केट में एक ऑनलाइन डॉक्टर्स कॉल विद स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स कॉल मार्केट प्राइस है 299 से 599 एक कॉल। तो हम लोग प्रोवाइड करते हैं 15 रुपीज एक ऑनलाइन डॉक्टर्स कॉल। 24 आवर्स हमारा डॉक्टर्स कॉल अवेलेबल है। इंडिया में कोई भी जगह से ये डॉक्टर्स कॉल किसी भी आदमी से ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। हमारा सब्सक्रिप्शन सिस्टम है उसी मॉडल में, और इतना कम पैसे में हम लोग डॉक्टर्स कॉल दे पा रहे हैं। इसीलिए ऑल आर डॉक्टर्स अबव 65 डॉक्टर्स हमारा फुल टाइम पैनल सैलरी डॉक्टर्स है। तो वो लोग हमारा कॉल सेंटर में बैठ के कॉल रिसीव करते हैं और उसका ऊपर सर्विस देते हैं। तो इतना कम पैसे में पूरा इंडिया में हमारा सर्विस 12 स्टेट में चालू है, और इंडिया में आज तक हमारा कोई कॉम्पिटिटर्स नहीं है। हम लोग चाह रहे हैं गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी, सब आदमी का पास ये सर्विस पहुंचे। आप लोग जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं, आप लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो इसका ऊपर सोचिए। कम आदमी को बचाने के लिए, कॉमन पीपल को 24 आवर्स हेल्थ केयर का जो चक्कर है पूरा इंडिया में, उससे बचाने के लिए ऑनलाइन डॉक्टर्स कॉल छोड़ के कोई रास्ता नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार। One of our incubates, Dr. R. Raj from Subha Wellness Private Limited. Very good morning to all of you. डायरेक्टर सर को मेरा प्रणाम, धीरज सर को भी मेरा रिगार्ड्स, एंड मेरे CEO सर जो ACICA के CEO सर हैं उनको भी, और आई वेलकम एवरीबडी फ्रॉम द फैकल्टी ऑफ ACICI। एंड हमारा एक छोटा
स्टार्टअप किया है हमने जस्ट एज चिंतन सर ने बोला कि मिलियन डेवलपमेंटल गोल है, तो हेल्थ भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको कि हम लोगों को अचीव करना है। हेल्थ फॉर ऑल ये एक गोल था सभी को करने का, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अब इंडिया का जो डिजीज पैटर्न है वो शिफ्ट कर गया है टुवर्ड्स द क्रॉनिक डिजीज। सिर्फ इंडिया का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड का जो डिजीज पैटर्न है वो धीरे धीरे क्रॉनिक डिजीज के तरफ में शिफ्ट कर गया है। कुछ दिन पहले के रिसर्च के मुताबिक ये देखा गया है कि जिस तरीके से कम्युनिकेबल डिजीजेज है, वैसे ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है, जैसे कि डायबिटीज़, थायराइड, कैंसर और भी विभिन्न नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बहुत तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अब धनबाद में भी जैसे कोल माइनस डिजीजेस बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनको सही तरीके से सही टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। तो हमने और हमारे को फाउंडर हमारे फादर मिस्टर मनोहर दास जी वहाँ पे अभी हैं, आए हुए हैं, तो हम लोगों ने एक ये सोच करके कि क्रॉनिक डिजीज का ट्रीटमेंट ऑनलाइन और बहुत कॉस्ट इफेक्टिवली, जो कि कस्टमाइज जो रहेगा, जिसको जिस तरीके का तकलीफ है, अगर पेट में तकलीफ है या छाती में तकलीफ है, तो लोग स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं कि कौन से डॉक्टर के पास जाना है, कौन से स्पेशलिस्ट के पास में जाना है, और उसमें टाइम निकल जाता है उनका। तो हमारा ये एक मूव है ताकि लोगों को सही टाइम पर उनको सही ट्रीटमेंट मिल पाए। और कई बार होता है कि आलस के तौर पे वो डायग्नोस्टिक सेंटर नहीं जा पाते हैं, क्योंकि तुरंत से वो उनको वो एलिमेंट बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं कर रहा होता है। तो फ्रॉम द वेरी सोर्स हमारे पास में एक ही प्लेटफॉर्म पे सारा कुछ डायग्नोस्टिक, ई फार्मेसी ऑन द डोर स्टेप, और एम्बुलेंस या व्हीकल सपोर्ट भी, ताकि वो अपना ट्रीटमेंट ठीक से करा पाए, डायग्नोस्टिक सेंटर पे जा करके वेल डायग्नोस्ड हो करके और उनका सही ट्रीटमेंट टाइम पर हो पाए। इसका एक हम लोगों का पहल है, क्योंकि इंडिया का जो बहुत बड़ा एक पार्ट है रेवेन्यू का, बहुत इम्पोर्टेंट, वो हर साल ये चला जा रहा है इसके ट्रीटमेंट में, राउंड अबाउट 4.8 बिलियन डॉलर्स के आसपास में, और आने वाले समय में ये उससे भी ज़्यादा बढ़ करके दूसरे देशों में चला जा रहा है। तो हम लोगों का ये पहल है कि वो अमाउंट इंडिया में ही रहे और लोगों को एक बेटर ट्रीटमेंट मिले, एक कॉस्ट इफेक्टिव, टाइम इफेक्टिव और ट्रीटमेंट इफेक्टिव के तौर पे। थैंक यू। Thank you so much, sir. Next, I would like to invite Mr. Naresh Kumar Vishwakarma from Bhendra Tools Cluster. Good morning, everybody. मैं नरेश विश्वकर्मा भेंड्रा बोकारो से। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ACIC के डायरेक्टर सर और ACIC के CEO और ISM फाउंडर को, जिन्होंने हम भेंड्रा लोह कुटीर उद्योग को भी यहाँ पर इनवाइट किया। मुझे तो पहले पता ही नहीं था कि इतना बड़ा सेंटर हमारे बीच में है, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट हमारे बीच में है, जबकि हम लोग मात्र धनबाद से 30-35 किलोमीटर के दूर में हूँ। मुझे एक व्यक्ति से पता चला कि यहाँ पर हम लोगों के विषय में भी सुना जा सकता है, तो हम लोग आए और मैडम कमेलिया और मैडम आकांक्षा ने हम लोगों को बहुत रिस्पांस दिया। हमारे CEO साहब भी हम लोगों को बहुत सुने, और इतना ही नहीं, हम अपने यहाँ के जो हैंड टूल्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स है उसको लेकर डायरेक्टर साहब से भी मिले और उन्होंने भी काफ़ी बड़ा रिस्पांस दिया। और इतना ही नहीं, मैडम कमेलिया और मैडम आकांक्षा ने हमारा भेंड्रा को विजिट किया, और फिर वहाँ भेंड्रा में जाने के बाद वो अपना रिपोर्ट दी। फिर यहाँ से तकरीबन 6 प्रोफेसर साहब और 6 स्टूडेंट हमारे गाँव में आए। मैं काफ़ी खुश हुआ कि एक छोटा सा गांव है जिसके संबंध में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि भेंड्रा इज़ द सैफील्ड ऑफ झारखंड। सैफील्ड के संबंध में बताऊँ, इंग्लैंड में एक ऐसी इंडस्ट्रीज है जहाँ पर सुई से लेकर जहाज तक बनाया जाता है। वहाँ का फोर्ड जो टीम लीडर थे, उन्होंने आए और यहाँ पर उनकी कार्यकुशलता को देखकर बताया था उस समय 1956 में भेंड्रा इज द सैफील्ड ऑफ झारखंड, और बिहार, उसमें बिहार था, अभी झारखंड है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि भेंड्रा एक लोह कुटीर उद्योग है जहाँ पर शेर शाह के लिए भी हम लोगों ने
उपकरण, उनके युद्ध लड़ने के लिए तलवार वगैरह बनाया करते थे, आज भी वो जारी है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि वो एक ऐतिहासिक गांव है। यदि आप जीटी रोड से गुजर रहे होंगे तो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में जैसे ही इन करते हैं आप, तो जीटी रोड के दोनों साइड में तलवार बिकते हुए आप देख रहे हो। ऑल प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम भेंड्रा। हम लोगों ने भेंड्रा टूल्स इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड बनाई है, जिसके द्वारा वहाँ के आवाज़ को हम लोग सरकार तक पहुँचाने के लिए काम कर रहे हैं। और हम आपको ये बताएं कि वहाँ पर तकरीबन 700 से 1000 तक कुशल कारीगर लोग हैं जो प्रत्येक दिन अपने कामों में लगे हुए हैं। टोटली काम जो है 15वीं सदी से अभी तक टोटल मैनुअल काम है। आप यदि हजारीबाग के गजट भी उल्टा कर देखें तो उसमें भी भेंड्रा का जिक्र है। जहां ये बात मैं कह रहा हूं वहां पर लिखा गया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि गजट को देखें। साथ ही साथ ACIC के CEO साहब और उनके पूरे टीम को मैं ये कहना चाहूँगा कि वो लोग विजिट किए हैं और उन लोग एक प्रोग्राम बना रहे हैं। वहाँ का प्रोडक्शन से संबंध में 1 मिनट कहना चाहूँगा कि कोई भी लोहे का प्रोडक्ट आप उसको दिखा दीजिए ब्लैक स्मिथ को, वो अपने हेल्पर के साथ मिल के नक्शा को समझ के और हूबहू वो बना देंगे। वहाँ का मैन्युफैक्चरिंग का बहुत सारा सामान 17वीं ईस्वी में जब हैंड टूल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं था, उस समय वो लोग आपका हैंड टूल्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। और 1970 से लेकर अभी तक रेलवे को, डिफेंस को बहुत सारे टूल्स वहाँ दिए जा रहे हैं। मैं इंस्टीट्यूट से आग्रह करूँगा कि वहाँ जो ट्रेडिशनल तरीके से काम की जा रही है, यदि उनको आज के टेक्नोलॉजी से जोड़कर काम करने के लिए आगे ले जाया जाए तो भेंड्रा का कायाकल्प हो सकता है और भारत में उसका नाम हो सकता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी इस पर ध्यान दिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।